Hello kids, how are you all? I hope you all are doing good and enjoying your online classes also. So children, as you all are aware that we have started unit 1, the natural world. So in that we have done page number 36 and 37, which is useful plants, yesterday, and today we will do again a chapter which is related to animals life, that is page number 61, animals in danger. Page number 61, that is animals in danger. Now what do you mean by danger? Danger means that is a situation in which some difficulty is there, or that is not good for animals. So that kind of a situation which is not good for animals, that means that animals in danger. So danger means, if we'll go in Hindi, danger means khatra. Khatra means that is not good thing. Fine. So why we called it animals in danger? Because nowadays so many animals which are at high risk. High risk means they are going to be extinct. Extinct means they are going to be, वो धरती से धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. सो यू अंडरस्टैंड दिस ओनली कि वो धरती से धीरे धीरे कम हो रहे हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी और बाय सम पॉल्यूशन और सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, कि दे डोंट एबल टू सर्वाइव इन देयर नेचुरल हैबिटेट. तो वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो हमारे नेचुरल हैबिटेट में नहीं सर्वाइव कर पा रहे. दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. सो इन दैट रोल सो मेनी एनिमल्स वर देयर. अभी हम लोग समटाइम वी हर्ड अबाउट डायनासोर. सो डायनासोर्स क्या होते, दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. अप टू सम एक्सटेंट दे विल गेट एक्सटिंक्ट. तो डायनासोर वी हैव नॉट सीन इट कि डायनासोर कब थे हमारी अर्थ पे और कब नहीं थे. बट देयर आर सम ऑफ द एनिमल्स, लाइक इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ अ बर्ड. आपने स्पैरो देखी होगी पहले हमारे घर के पास आस पास, जिसको हिंदी में हम गौरैया भी बोलते हैं. दैट बर्ड वी कॉमनली सी इन आवर सराउंडिंग. बट नाउ अ डेज अभी आप देखो, दैट इज नॉट वेरी कॉमन. आपको इजीली कहीं पे भी देखने को वो गौरैया जो चिड़िया छोटी सी होती थी, और दैट स्पैरो यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट आउट इजीली. बहुत कम अब आपको देखने को मिलेगी. इनफैक्ट पिजन ऑल्सो पहले हमारे लोकेलिटी में या आपके सराउंडिंग में कहीं पे भी जब आप वीट या राइस ऊपर डालते थे छत पे सुखाने के लिए, तो लॉट ऑफ पिजन वर कमिंग ओवर देयर. बट अभी क्या है, यू वोंट बी एबल टू फाइंड. सो व्हाट इज दैट? दैट मीन्स दे आर एक्सटिंक्ट. दे आर गोइंग टू बी फिनिश्ड, और दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम आवर अर्थ. So just like that, few of the animals which are getting extinct from our earth, so these animals are at high risk. अब हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया इज अवर कंट्री, एंड जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, दैट गवर्नमेंट हैज डन टू फाइंड इट आउट which animals are going to be extinct. कौन से एनिमल्स ऐसे हैं which are at high risk. कौन से एनिमल हैं जो बहुत जल्दी हमारी धरती से ख़त्म हो रहे हैं. just find out and make a list of it, and then they are putting stress on all those animals which are getting extinct from our earth. तो उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि वो हमारी अर्थ से एक्सटिंक्ट नहीं हो. जैसे ब्लैक डियर. Black deer was very often we are able to see. बहुत कम हमें दिखने को मिलते. Why? Because इतना pollution हो गया और ऐसा environment हो गया that they won't be able to survive in their natural habitat. So in that row only we are going to study today about some of the animals which are getting extinct from our earth. So children, as you can see on your page number 61, what is given? Animal which are at risk. Underline this: animals which are at risk of being extinct are called endangered animals. Animals which are at risk
of being extinct are called endangered animals. Fine. So underline this. What are endangered animals? Endangered animals. Endangered animals are those animals which are at high risk. Endangered animals are those animals which are at high risk, which are going to be extinct from our earth. So these are called endangered animals. So in the category of endangered animal, we have our first animal. So here on page number 61 we are going to read about these endangered animals. So in that category, the first is Bengal tiger. Why it is called Bengal tiger? Because it is found in West Bengal. Fine. West Bengal में we have सुंदरबन नेशनल पार्क. वो कहाँ है? जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो वेस्ट बंगाल से पास होकर के एंड देन बे ऑफ बंगाल में गिरती है. तो वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र, जो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र और यहाँ से नॉर्थ से जाती है गंगा रिवर. दे विल मीट एट वन प्लेस. ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर दे मीट एट वन प्लेस. और वहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा. डेल्टा मीन्स दैट काइंड ऑफ ए फॉरेस्ट जो बहुत ही ग्रीनरी है वहाँ पे, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से वी फाउंडेड. अब वहाँ पे जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ टाइगर वी फाउंडेड, दैट इज बंगाल टाइगर. कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल में मिलता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बंगाल टाइगर. तो एंडेंजर्ड एनिमल की लिस्ट में सबसे पहले नाम किसका आता है? आता है बंगाल टाइगर का. व्हाई इट इज कॉल्ड बंगाल टाइगर? क्यों इसको हम बंगाल टाइगर कहते हैं? बिकॉज दिस टाइगर इज फाउंड इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में कहाँ पे मिलता है? वेस्ट बंगाल में इन सुंदरबन डेल्टा. You have to remember this much, that it is found in Sundarban Delta. Fine. Bengal tiger, which is going to be extinct, कहाँ मिलता है? It is found in West Bengal in Sundarban Delta. अब Sundarban Delta क्या है? That Brahmaputra river is coming from one side and दूसरी साइड से ऐसे गंगा रिवर आती है. अब यहाँ पे ये at this point both these rivers meet. अब इसके आसपास का जो एरिया है, इसके आसपास का जो एरिया, इट इज क्वाइट ग्रीनिश. अब इसके आसपास का एरिया बहुत हरा भरा है. सो दैट पार्ट इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा. दैट पार्ट इज कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा. अब इस पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा. सी इट इज नॉट गिवन इन योर बुक बट इट इज नेसेसरी टू नो कि भाई कहाँ पे ये इस टाइप ऑफ ए टाइगर भी फाउंडेड. सो दैट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो. सो नाउ we'll see what is Bengal tiger. Bengal tigers are found in India, Bangladesh. Now in different country Bengal tiger is found. In India it is found in West Bengal, and now Bengal tiger are found in India, Bangladesh, Nepal, China, Myanmar and Bhutan. See, you can see different countries. Most of the countries are near Sundarban Delta only. Now Bangladesh is near that only. Then Bay of Bengal के पास में म्यांमार आ जाता है. If you have seen the map, तो ठीक है, you just remember it that Bengal tigers are found in different countries like India, Bangladesh, Nepal, China, Myanmar and Bhutan. Now they are threatened by hunting for their skin. Now threatened means they are quite वो डर रहे हुए हैं because so many people hunt them for their skin. Actually क्या है, जो टाइगर्स की स्किन है that is very costlier, बहुत कॉस्टली होती है. उसको क्या करते हैं दैट इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब जो जिनकी फैक्ट्रीज हैं, दे हंट दोज टाइगर और उसकी जो स्किन होती है उससे डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक बैग बनते हैं एंड देन डेकोरेशन पीस बनते हैं एंड लॉट मेनी थिंग्स वर मेड फ्रॉम दैट. अब उसको बनाने के लिए दे हंट बंगाल टाइगर्स.
ठीक है, तो वो उसको हंट करते हैं, देन दे आर गेटिंग थ्रेटन. So they are threatened by hunting for their skin, skull, bones and whiskers. So each part of that Bengal tiger is used. आपने you must have seen कि कहीं किसी किसी घर में पुराने, if you seen old movies, वहाँ पे उसके सिर भी टांग करके रखते थे टाइगर का. whatever they hunt, पुराने टाइम में क्या होते थे, जो किंग्स होते रहते थे, दे गो टू शिकार इन जंगल में जाते थे शिकार करने के लिए, एंड दे आर हंटिंग देम एंड देन दे आर ब्रिंगिंग. ये तो बहुत पुरानी बात होगी, बट नाउ अ डेज ऑल्सो जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही हैं, दे वर हंटिंग दोज टाइगर्स एंड देन दे वर कीपिंग देम फाइन फॉर यूटिलाइजिंग देयर स्किन, देयर स्कल मीन्स हेड वाला जो पार्ट है दैट, एंड देन बोन्स एंड देन विस्कर्स. It means all the part of that tiger is used. अब वो उनको वो डर से and they get threatened, and that's why the amount of those Bengal tiger is going to be less. So you have to remember the first animal which is endangered, that is Bengal tiger. And where it is found in different countries, in not only in India, it is found in India, then Myanmar, Bangladesh, Nepal, China, Bhutan, in all these countries. Now they are threatened for what? They are threatened for by hunting for their skin, skull, bones and whiskers. So ये सब चीज़ के लिए for their skin, आप उनका skin भी इंडस्ट्रीज के लोगों को, they want their skin to make different things like बैग बनाने हैं, शूज़ बनाने हैं, उसके बाद फिर डेकोरेशन पीस बनाने हैं. फॉर दैट दे रिक्वायर देयर स्किन. सो दे हंट देम एंड देन दे आर टेकिंग देयर all these parts like skin, skull, bones and whiskers. So you have to remember where they found and why they are getting threatened by hunting. For what? For their skin, skull, and they are hunting for their, they are hunting for, especially for skin, for their skin. This much you have to remember, they are hunting for skin. Skin is very important. Now we'll come to a second endangered animal. Now the second endangered animal which is there is, now you can tell them endangered also, you can tell them extinct animals, they, which are going to be less. So the second was chimpanzees. Now chimpanzees are a breed of monkey which are bigger in size. Chimpanzees are the species of monkey only, species of monkey which are bigger in size. Fine, these species are of monkey only. Now chimpanzees are very much like human. Now chimpanzee we can compare it with human. उनका जो intelligent level होता है that is just equal to human being also, human being only, and they take care of their children for years. Now they are in danger due to hunting and loss of their forest homes. Fine. Now they were hunting for what? Now most of the, because chimpanzee has many quality which is similar to human, and if any medicine will be made, so that testing of medicine was done on chimpanzee. If that medicine is successful, then that test was done on chimpanzees. So they were hunting for those, उनको पकड़ करके लेके आते हैं, बंद करके रखते हैं फॉर एक्सपेरिमेंट, कि कोई भी न्यू मेडिसिन अगर हमने बनाई है फॉर ह्यूमन बीइंग, तो उसका टेस्ट किसके ऊपर होएगा? चिंपैंजीज के ऊपर होएगा, चिंपैंजीज के ऊपर उसका टेस्ट होएगा. सो व्हाट हैपन कि वो उसके लिए पकड़े जाते हैं. एक्चुअली उनको मारा नहीं जाता, उनको पकड़ करके ले आते हैं और उसके बाद उनको केजीज में, पिंजरे में बंद करके रखते हैं.
और वेन एवर एनी मेडिसिन रिक्वायर्ड एनी टेस्ट, तो वहां से चिंपैंजीज को लैब में लेके जाते हैं जहां पे मेडिसिन वो बनाई हुई है, एंड दैट वैक्सीन का जो टेस्ट है दैट विल बी डन ऑन चिंपैंजीज, बिकॉज चिंपैंजीज आर क्वाइट सिमिलर टू ह्यूमंस। अब जो भी रिस्पॉन्ड चिंपैंजीज अपनी बॉडी पे उस मेडिसिन का दिखाएंगे, दैट रिस्पॉन्स इज क्वाइट सिमिलर विद द रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन। कि अगर चिंपैंजी को कोई प्रॉब्लम है या फिर उन्होंने कोई भी मेडिसिन बनाई, फॉर एग्जाम्पल कि किसी की लिसनिंग पावर कम है या किसी का ब्रेन का डेवलपमेंट कम है, तो वो उन्होंने कोई ब्रेन को डेवलप करने की मेडिसिन बनाई, तो वो क्या करेंगे, वो चिंपैंजी के ऊपर उसका टेस्ट करेंगे। अगर चिंपैंजी की ब्रेन की डेवलपमेंट तेज हो गई, बढ़ गई, सो इट शोज कि ह्यूमंस पे भी उसका उस मेडिसिन का सेम इम्पैक्ट आएगा। So that is why chimpanzees are kept in cages, and these are used for testing medicines also, and the loss of their forest home. धीरे धीरे due to industrialist, हमें इंडस्ट्रीज लगानी है, वी रिक्वायर्ड मोर फील्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, ऐसे ऐसे हमें बहुत सारी चीजों के लिए वी रिक्वायर्ड लैंड, तो हम क्या करें, धीरे धीरे फॉरेस्ट काटना शुरू कर दे रहे हैं। फॉरेस्ट काटते जा रहे हैं, तो वे शुड दे लीव, है ना, वे शुड दे लिव। उनको तो घर है ही नहीं, उनके पास तो जगह ही नहीं है, दे आर लिविंग इन जंगल, और जंगल हमने काट दिए, तो वेयर दे आर गोइंग टू लिव, तो वो कहाँ रहेंगे, उनके पास तो हाउसेज ही नहीं है, उनके पास तो घर ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में दे आर कमिंग टू द सिटीज, वो फिर सिटीज में आते हैं, फिर और अदरवाइज दे डोंट हैव फॉरेस्ट टू लिव, तो वो मर जाते हैं, और या तो मर जाते हैं या फिर नहीं तो उनको पकड़ करके दे आर ब्रिंगिंग देम टू द लैब। तो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजन व्हाई चिंपैंजीज आर गेटिंग एंडेंजर्ड। क्यों ये इनकी लाइफ इतनी खतरे में क्यों है, बिकॉज दीज आर गेटिंग हंटेड फॉर वी आर हंटिंग चिंपैंजी फॉर test, hunting for test, fine, testing of medicine, secondly, no forest is there to live, no forest is there, अभी फॉरेस्ट ही नहीं है, वी आर कटिंग ऑल द ट्री, सारे ट्री काटते जा रहे हैं, तो फॉरेस्ट ही नहीं बचा, फॉरेस्ट नहीं बचा तो वेयर दीज चिंपैंजीज आर गोइंग टू लिव। सो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजन व्हाई दीज एनिमल्स आर गेटिंग एंडेंजर्ड। बंगाल टाइगर में भी आप देखो, वन ऑफ द मेजर रीजन इज दैट फॉरेस्ट ओनली। जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे, देन वेयर दीज एनिमल्स आर गोइंग टू सर्वाइव। आपके साथ घर में आकर के या शहर में आके तो दे वोंट बी एबल टू लिव, वो यहाँ पे शहर के एनवायरनमेंट में या फिर कोई आपके नॉर्मल यहाँ के सराउंडिंग में दे वोंट बी एबल टू लिव। तो उस केस में व्हाट दे रिक्वायर्ड अ प्रॉपर फॉरेस्ट और जंगल वेयर दे कैन लिव, वेयर दे कैन सर्वाइव, which will create a natural habitat for them. So for getting endangered these animals, somewhere the human activities are only responsible, not somewhere, overall human activities are responsible. हमें इंडस्ट्रीज लगानी है तो हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। अब लैंड चाहिए तो लैंड कहाँ मिलेगा, सिटीज तो फुली ऑक्यूपाई हो गए हैं, सिटीज तो पूरे भर गए हैं, तो वहां तो लैंड नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा लैंड, लैंड हमें मिलेगा फॉरेस्ट में जाकर के, तो फॉरेस्ट में जाके लैंड मिलेगा, तो हम फॉरेस्ट काट दे रहे हैं, तो एनिमल्स वेयर दे आर गोइंग टू लिव। सो इन दिस रो ओनली वी हैव अवर थर्ड एंडेंजर्ड एनिमल, दैट इज पोलर बेयर। नाउ पोलर बेयर, or sometime we called it polar bear also. Polar bear, it is exactly bear. The pronunciation of B-E-A-R is bear. Polar bear. Polar bear. Okay, so polar bear are found throughout the Arctic region. Now what is that Arctic region? Arctic region is the South Pole one area. South Pole मतलब जो आपकी अर्थ है,
अर्थ का सबसे लोअर एरिया जो है, लोअर मतलब दैट मीटिंग एंड, उसको हम बोलते हैं साउथ पोल. सो the polar bears are found throughout the Arctic region and spend most of their lives on the ice of the Arctic Ocean. Now they are at risk due to climate change and illegal hunting. Now what is the change in the climate? First of all, I'll show you what is South Pole. What is South Pole क्या होता है and where is Arctic Ocean or Arctic region is there. Okay, now can you see this? What is this? Do you know the name of this? ऐसा आपने पहले देखा है? Yes, obviously you have seen in your EVS book. इसको हम बोलते हैं globe. What is that globe? Globe is a representation of our earth. अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, that many continents and whatever we will find it out. अब इसमें आपको समझना है, ये ग्लोब के अंदर ये ऊपर वाला पॉइंट होता है नॉर्थ, ये सबसे नीचे वाला जहाँ पे ये लगा हुआ है दैट इज योर साउथ, ये साउथ. अब क्या हुआ, अभी हमने क्या पढ़ा, दैट पोलर बेयर आर फाउंड थ्रू आउट द आर्कटिक रीजन. अब आर्कटिक रीजन कहाँ चला गया हमारा, आर्कटिक रीजन हमारा यहाँ पे नियर द आर्कटिक ओशन. अब यहाँ पे हम देखेंगे वेयर इज द आर्कटिक ओशन. See this, fine, you can see this Arctic Ocean and यहाँ पे ये सारा आपका जो नॉर्थ साउथ पोल वाला एरिया है that is your Arctic Ocean. So here in this region ice is there only, क्योंकि यहाँ पे सन की डायरेक्ट हीट नहीं पहुँचती. So most of the year यहाँ पे आइसी वेदर ही रहता है, बहुत ठंड रहती है यहाँ पे, ये साउथ पोल पे. And there only these polar bear are found. अभी nowadays slowly they are going to be extinct. Why they are going to be extinct? Because they are not getting that particular type of environment over there. वहाँ पे भी रहने के लिए इनको एक particular environment नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा? Because due to climate change. Due to climate. अब climate कैसे बढ़ गया, कैसे चेंज हो गया? इट मीन्स कि पहले क्या होता था, वहाँ पे हीट नहीं आ रही है तो वहाँ पे एकदम ठंडा रहता था एंड दे विल बी एबल टू लिव देयर वेरी कंफर्टेबली. बट नाउ अ डेज व्हाट हैपन, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया है कि धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट साउथ पोल पर भी जाता है. वहाँ पे भी दे डोंट हैव दैट टेम्परेचर विच अर्लियर दे हैव. जो पहले वहाँ पे टेम्परेचर होता था एकदम ठंडा रहता था एंड दे कैन लिव ओवर देयर इजिली, और दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड दे आर गेटिंग ओवर देयर. तो अभी वहाँ पे ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब हम क्या होता है पेड़ काटते जाते हैं, लाइक मैंने अभी बताया फॉरेस्ट काट रहे हैं तो वो हीट कहाँ जाएगी, दैट हीट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द फॉरेस्ट, क्योंकि पहले जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट लेते हैं. अब जब प्लांट है ही नहीं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, वो एटमॉस्फेयर में जाएगी. एटमॉस्फेयर में जाएगी तो वो क्या करेगी, एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी. एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, क्लाइमेट चेंज होएगा, विच इज नॉट सुटेबल फॉर दोज एनिमल्स विच आर लिविंग इन पोलर रीजन और विच आर लिविंग इन अ रीजन वेयर icy or some cool weather is there. That's why only आपको बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी मिलेंगे which migrate from one place to another place. Migrate मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जैसी वेदर चेंज होता है. तो यहाँ पे polar bear are found throughout the Arctic region and spend most of their lives on the ice of Arctic Ocean. Arctic Ocean के मैक्सिमम टाइम वो आइस जो आर्कटिक ओशन में जो आइसी वेदर होता है वहाँ पे ही वो दे स्पेंड. दे आर एट रिस्क ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. अब क्लाइमेट चेंज मैंने बता दिया, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से बहुत गर्मी हो रही है तो वो क्लाइमेट चेंज से क्या हो जा रहा है, उनको क्लाइमेट चेंज से दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव ओवर देयर. वहाँ पे बहुत गर्मी हो जा रही विच इज नॉट सुटेबल फॉर देम, क्योंकि दे हैव अ फरी स्किन.
उनकी जो स्किन होती है बहुत मोटी होती है, और उस स्किन के नीचे मेनी लेयर्स आर देयर, उसके नीचे काफी लेयर्स होती है। वो लेयर्स को क्या करते हैं, वो लेयर्स कीप देम वार्म। अब वो लेयर्स तो उनको गर्म रख रही है और बाहर भी गर्मी है, तो दे विल बी एबल टू सर्वाइव नहीं। उसके बाद इलीगल हंटिंग इज द सेकेंड रीजन। नाउ इलीगल हंटिंग मीन्स हंटिंग इज नॉट लीगल। अगर कोई किसी चीज का शिकार कर रहा है, इट मीन्स दैट इज नॉट लीगल, दैट इज इलीगल हंटिंग इज गोइंग ऑन. So illegal, due to illegal hunting also, that polar bear don't able to survive in that Arctic region or in Arctic ocean. And जब वहाँ गर्मी हो जाएगी, then they are not getting sufficient amount of food also. जो वो fishes वगैरह को खाते हैं, they are not getting that particular or sufficient amount of food there. वहाँ पे उनको sufficient amount of food भी नहीं मिल रहा है, so that they won't be able to survive over there. So these are the few of the reason why they won't be able to survive in that particular region. हमने देखा 3 endangered animals. First one was Bengal tiger, second is chimpanzees, and the third one is polar bear. Bengal tiger they found in 7 countries: India, Bangladesh, Nepal, China, Bhutan, and Myanmar. In different countries they found it, and mostly they found it in West Bengal. In India these are found in West Bengal, in Sundarban Delta area, and they hunting for their skin. They hunted for their skin, skull, bones, and viscous. Means each part of tigers are useful. They are getting hunting for all these things. Now come to chimpanzees. Chimpanzees, these are hunting for testing of medicines. Means chimpanzees are getting hunted by human beings, or they are keeping them caves or cages, so that whenever new medicine will be there, so that will be tested on chimpanzees, because chimpanzees are quite similar to human beings. Now no forest is there, where should they live? A polar bear, they are living in which area? That is Arctic ocean. And again the problem is same, they won't be able to survive. Why? Due to climate change. They won't be able to survive due to climate change, as well as and hunting. Again illegal hunting is there, which don't help them to survive. Fine, due to illegal hunting they won't be able to survive over there. So these are the few causes of getting endangered these animals. Now quick quiz which is given on this page. When an entire species or a type of animal dies out, that species become extinct. कि अगर कोई भी टाइप का एनिमल है, वो अगर पूरा खत्म हो जाता है, it means those animal will become endangered. So here, can you identify these animals which do not exist anymore? अभी देखो, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, देन आई हैव टेकन नेम ऑफ दिस विच इज डायनासोर. फाइन, फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ डायनासोर. सिमिलरली यू विल फाइंड इट आउट विच पिक्चर इज सेकेंड. नाउ दैट हेल्प बॉक्स इज ऑल्सो गिवन ओवर देयर कि दूसरी वाली पिक्चर किसकी है, एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो मैमोथ. तो यू जस्ट फाइंड इट आउट. And dodo, second is dodo and the third is mammoth. You just write it down in your book, this quick quiz yourself, and we will discuss about these endangered animal in our online class also, that why they are called endangered animals, and why we call them sometime extinct also. So today we have done about animals endangered or endangered animals. 3 animals we have done. Apart from these 3 animals, in quick quiz you have been given with
3 more animals picture which are not at all existing in our surrounding, and you will write their name. You will write their name there in your book. And that's all for today, children. Good day, children.